स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। He comes from a lineage of great sages, yogis, and saints from India. He began his spiritual journey at the age of 7 and was fully realized by the age of 14. During this time, he delved into different practices and acquired mastery over Tantra, Mantra, Yantra, Aghori practices, and Yaksha sadhana. He was a siddha and many masters, saints, and sages used to visit him in solitude to gain wisdom and guidance from him since the tender age. Although he has been helping humanity since childhood, he never disclosed this part of him to the world, and only the advanced yogis and masters were aware of his divine presence. Only in the last 2 years he chose few people from the world and started guiding them in their spiritual paths, and those who have been closely associated with him have witnessed many miracles in his presence. Despite being a family person, he is a yogi and intends to help people entangled in this world achieve Jivan Mukti, liberation while being alive. He is truly in the world but not of the world, and if you really want to understand him, look him beyond his physical appearance and just sit with him and you will never be the same again. In his presence you will transcend your body and mind and experience the state of Sat, absolute truth, Chit, pure consciousness, Ananda, eternal bliss. Let us fold our hands in front of his divinity and with a heart filled with gratitude and love welcome our spiritual guru, the realized soul, and our enlightened master, Guru Meenakshi Mishra.
ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अहं ब्रह्मास्मि। गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टू दिस अनदर सेशन ऑन Q&A. So all being here on time. So if any one of you have any questions, please raise your hand so that Haribhai will unmute you so that we can go ahead with the Q&A session. And yes, good morning to people, those who have joined us from other parts of the world. Good afternoon as well, because I see some people from other time zones as well. So welcome. So the first question, Haribhai, if we can Yes, please Ganesh. unmute Janesh ji. Ganesh ji, please unmute yourself. प्रणाम गुरुदेव। Pranam Janesh ji. गुरुदेव, दो ये है अपने मंत्र। एक है सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और एक दूसरा है लोका सर्वा सुखिनो भवन्तु। तो जब हम ये लोका सर्वा सुखिनो भवन्तु कहते हैं, तो क्या वो जो आपने पिछली बार बताया था जो अलग अलग लोक है, तो आर वी विशिंग फॉर ऑल द लोकास और आर वी विशिंग फॉर आवर दिस प्लेस? Okay. और वो जो सर्वे संतु निरामया है, वो तो लिटल मीनिंग जो इस हमारे आजू बाजू जितने भी लोग है, जो भी जीव है, सबको सुख मिले। तो थोड़ा इसमें समझ में मुझे। ओके, ठीक। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्, वही है ना? हाँ। Then the other thing that we speak of is loka sarva samasta sukhino bhavantu. So if you look at the grandeur of the Sanatan Dharma, they never ever only thought about one thing. It all depends कि what kind of mindset a people have. Like चाहे आप लोगों के बारे में सोच रहे हो या तो लोक के बारे में. Now how many of us really know about the lokas? Still, despite that knowing, अगर आप just looking at it as loka samasta, means every human being on this planet, may there be bliss, may there be happiness, may there be ecstasy, may there be health, wealth, abundance kind of thing that we are talking about. So even in that way it is correct. And even if we are looking at the entire cosmic creation, all the lokas, the recorded lokas, the most common 14 that are recorded, even in that, even if you look at that, Janesh ji, even in that way also they say loka samasta, how a greater a mind can work. When everybody is just thinking about their own selves, we are talking about not only mankind, we are talking about all creation. So with this idea of that, the question that you put forth, loka samasta, and if you have that meaning within you, that lokas means it is not only the human beings, entire creation itself.
पूरा समग्र जो सृष्टि है उसके बारे में अगर आप भी सोच रहे हो, is there anything wrong in that? No. Absolutely perfect. Because if you are Well, thinking about the greater cause, I think that is much better than that. हाँ, And that you क्योंकि only मुझे come to realize when you are walking on this path and you are realizing all these things in your life, then you are not limiting yourself to certain. और मुझे कहीं ना कहीं जनेश जी ऐसा भी लगता है, जब तक आप किस दृष्टि उतनी तक नहीं खुली, आप शायद इंसान के बारे में सोचोगे. अप अंटिल यू हैव रियलाइज दैट पार्ट, यू ओनली थिंक अबाउट ओके, लेट बी देयर बी पीस एंड हैप्पीनेस इन द ह्यूमन मैनकाइंड. लेकिन जब आप उसके ऊपर चले जाते हो, व्हेन यू ट्रांसेंड बियॉन्ड दैट आल्सो, देन व्हाट डू यू डू? देन यू से नॉट ओनली लोक, दैट मींस नॉट ओनली द ह्यूमंस बट आल्सो द एंटायर क्रिएशन. एंड आई थिंक दैट्स both way, it's okay. But why not pray for the entire creation itself? So that's your evolution, that you are no more only thinking about yourself or the fellow human beings, but beyond. And I think that's absolutely fine. दूसरा प्रश्न था गुरुजी, पिछले अपने प्रश्नोत्तरी में यक्ष का रेफरेंस आया था. यक्ष का तो यक्ष लोक का रेफरेंस आया था, यक्ष यक्षिणी वगैरह का आप समझा रहे थे Okay. प्रश्न के उत्तर में. तो जो अपना शिव पंचाक्षरी मंत्र है उसमें आखिरी में जो है उसमें यक्ष स्वरूपा जटाधराय, तो शिव को यक्ष का स्वरूप बताया गया है. तो ये इसका क्या संगत है? क्योंकि यक्ष तो आपने बताया था वो एक लोक है और यक्ष है, तो ये थोड़ा मुझे इसमें थोड़ा और ज्ञान क्लैरिटी दे. तो चाहिए. एक बात बताइए, शिव क्या नहीं है? सब है. तो फिर यक्ष क्यों नहीं हो सकता? हाँ, लेकिन why only यक्ष when there are so many lokas and so many महर लोक, जैसा आपने बताया गंधर्व है, ये है वो है, तो why only यक्ष ऐसा? द ओनली थिंग इज, आप जब शिव के सहस्त्र नाम पढ़ोगे ना, तो शायद बाकी सारे भी उसी के अंदर ही आ जाएंगे. यू जस्ट गो एंड रीड देम वंस एंड यू विल फाइंड दैट इट इज नॉट दैट वन ओनली थिंग, दैट इज द क्रिएशन ऑफ द राइटर व्हेन ही वाज राइटिंग इट. व्हाट ऑल ही कुड सी हिम इन दैट फॉर्म्स, दैट वाज पुट इनटू वर्ड्स. ओके. तो वो उसने वो शब्दों का वर्णन के हिसाब से उन्होंने वर्णन कर लिया. लेकिन अगर आप देखोगे, अलग अलग जो भी रचयिता रहे हैं वो अलग अलग तरीके का रचना किए, और शिव के बारे में जितना बोलो उतना कम है. तो इनको जिस जिस स्वरूप में उनको दर्शन हुए या जिस जिस स्वरूप का उनको आभास हुआ, उन स्वरूप के हिसाब से उन्होंने उनकी व्याख्या कर दी. क्योंकि व्याख्या तो करना मुश्किल है इन सारी चीजों की. यू कैन नॉट पुट देम इनटू वर्ड्स, दैट्स द प्रॉब्लम आउट देयर. सो व्हाटएवर योर हार्ट फिल्स विथ, पुट दैट नेम टू देम. अगर कल के दिन अगर कोई शिव की कोई व्याख्या हो और उसमें जनेश का नाम आए, आई विल नॉट बी स्टन्ड इन दैट. ओके. बिकॉज as per my simple understanding, what is he not that he cannot be called that? True. So उसे किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है. No, because उनको भी बनाने वाला कौन हो सकता है? वही है. उनको चलाने वाला कौन हो सकता है? वही है. नहीं, मतलब एक तो था कि okay, so let me tell you why that is also called as yaksha swarupaya jatadharaya, right? Now remember swarnakarshan bhairav. What is that? वो सोना भी पहना है. What is yakshas? gold. So yaksha swarupaya jatadharaya. Despite you wearing all the gold ornaments, you are still a yogi who adorns a jata on his forehead. Okay. So yaksha swarupaya, when they are indicating that, they are also indicating that Shiva can also be, because that name is not indicated that. It is, इसे इंगित कहते हैं, means it is pointing towards something. Yaksha swarupaya jatadharaya means they are saying that they are not saying ये धनाकर्षण भैरव है, they are calling it another name to that.
But anyways, the indication goes to that only. और जब आप धनाकर्षण भैरव को देखोगे, so he also adorns a jata. Although the crown is there, but still it is. So he can take all that rupas, all that avatars. That's what it is. So यक्ष स्वरूपाय है कि नहीं है वो? हाँ, जो मुझे स्फुरना हुई वो ये था कि जब कभी भी किसी ने पहली बार यक्ष का स्वरूप दिखा देगा, विच इज वेरी ब्राइट, वेरी गोल्डन एंड एवरीथिंग, तो वो जो एक लाइट का एक स्वरूप है, शायद वो भावना से वो लाइट इतनी प्रखर थी. So you are talking about the complexion. Yes. However, if you go by that also, very few places it is mentioned that शिव का रंग अलग था, लेकिन जहर after taking the halal his color changed. That's what is also mentioned. Karpura Gauram. What is Karpura Gauram? जिसका कर्पूर के जैसा सफेद है. So Karpura Gauram Karunavatar. Now if you look at that Karpura Gauram, then why is Shiva blue then? So indication is that in the preliminary stage when Shiva appeared, it was like that complexion, pure white. But later on, after this हलाहल का पान करने के बाद उनका स्वरूप में वो रंग भी बदल गया. So even you are talking about that स्वरूप means he is so bright. उनकी तुलना यक्ष के साथ की जा सकती है. So see, everything that it is there is so many indications to one only thing. But all that we have to be looking towards is knowing him not by name, but by being it. उसे तो जानने के लिए कई नाम है, लेकिन कोई भी नाम उसे पर्याप्त नहीं है उसके लिए. So, but yes, may his blessings bless you. और गुरुजी एक पता नहीं कैसे, मतलब प्रश्न नहीं है, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशन है जो हो रहा है मेरे साथ साधना के आप ही की कृपा से. अभी आज की तारीख में जब भी मुझे थॉट्स आते हैं या ऐसा कभी ऐसा होता है क्या साधना में कि अचानक ऐसा बहुत सारी चीजें जिसके बारे में मुझे ज्ञात नहीं है, कुछ नहीं है, और अचानक ऐसा ऐसा एक as if I am under a waterfall and everything crops up in fraction of second, and it crops up in a chaotic clarity कि अरे बाप रे, अच्छा ऐसा भी है, ऐसा भी है. And when I am thinking or something ना गुरुजी, I can actually feel कि this thought has come from my left वाम भाग से आया, ये थॉट मेरे इस भाग से आया. एंड कभी कभी ऐसा फील होता है कि ये विचार यहाँ से आया, ये विचार यहाँ से आया, और आते सब पीछे से ही है. कोई मेरे को आगे से वो फीलिंग नहीं है ये विचार आने की. लेकिन जब भी विचार आता है और ऐसा ही मैं बैठा हूँ और मैं कोई एक क्रिया कर रहा हूँ, और जो जिसको बोलते बैक ऑफ द माइंड में कभी एकदम विचारों की श्रृंखला चलती है. I can see that these thoughts are coming from this side and these thoughts are coming from this side. So ये क्या, ये कोई विज्ञान है या ये कोई मेरी भ्रांति है? ये थोड़ा मैं. So in one way, Janesh ji, it is very simply understood that if you think about Neo Matrix, he goes through certain things like that, right? That he downloads a particular activity, a particular kind of language, a particular kind of fight. He downloads it, all that things. What do you think? Those are only frictions? Those are not frictions. Those are actually made out of, by going through all this Vedic literature, they have created that movie.
although they will not agree to that. However, if you have read all that, you will see how sequentially they have made it. Now coming to your place, neither you have chosen the red pill, neither the blue pill. Yet, when all these things is happening to you, what is the possibility of that and what can make this happen? उसका सीधा सरल सा उपाय और सरल सा आंसर ये है, when you are doing your sadhana and certain levels of chakras you get activated, that chakra when it gets activated, it gives you certain kind of knowledge, wisdom. उसी के तरीके से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उसी के तरीके से आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है कुछ चीजों का, जिसके बारे में आपको उसके बारे में पहले कुछ पता भी नहीं था, लेकिन अचानक से उसकी उपलब्धि हो जाती है. एंड यू टॉक लाइक ए प्रो इन दैट. उस चीज को आप जिस तरीके से समझ लेते हो और जिस तरीके से आप समझा सकते हो, शायद ही कोई वैसा कर सके. Because when you understand it from its core, from its base, from its seed level, then you know everything of it. And if it is happening to you, that's a very good sign. Because as and when you go on activating those chakras, you gain that kind of wisdom along with that. So good for you. गुरुजी आपकी I will कृपा say है, like keep on. ये आपकी कृपा है, ये सब आपका किया धरा है, मेरे को समझ में नहीं आता ये. See Janesh ji, one thing. You people keep on pushing all those things towards me, but let me tell you one thing. It's all you're doing as well, because आपने अगर वो साधनाएं नहीं की होती, then what? So that's what your preparation is all about. And when you are following what is being said, you have to go through certain things. वो अपना it will showcase that it is all that we are talking. It's not mambo jumbo that we speak of. No, it's not that. हम वो कैटेगरी में ही नहीं आते ये पूरा. The only thing is whatever we are doing here, like whatever is being said, you are being guided and you see the results in that. And if that result comes, then only it speaks the truth. I can tell you 1,001 stories, but those 1,001 stories won't make any change in your life until you experience it in your life. But when you are experiencing that, can anyone convince you that these things don't work? Because the greatest convincing thing that happens to you is your experience. And once you experience yourself, you cannot deny anything in this world. Let the entire world stand against you and say this is not what you want, because it's in your experience. The world might shout at its top voice, सब अपने पूरे जोर से भी अगर चिल्लाएं कि जनेश नाम का कोई प्राणी है ही नहीं इस जगत में, अब मान लोगे? That there is no one called as Janesh on this planet. Will you agree? You won't agree, because the name that you call yourself to this body as might be a number plate for this time, but you have accepted it. And when you have accepted it, you have also experienced it through this name. And when you have experienced yourself through this name, let alone the entire world be on the other side, you will say, it is in my experience. So what I have experienced cannot be false. So whatever we are doing here, let it be experiential ones, not just talks. Tab you gain the confidence, you speak your heart out and you say, I don't know how it happens, but I can say one thing, it happens. Thank you, Janesh. I believe like I answered your questions. So shall I move on? Yes. Thank you. Thank you so much. Let's Himabindu ji, please unmute yourself. Pranam Mahadev. Pranam Himabindu ji. How are you? Settled now? Yes, Mahadev, settled. Good. I have a same question. State of Preeti ji, I believe. You are in Texas? Yeah, I'm in Texas, Houston, Good. Mahadev. Houston. So I think Preeti ji also same area. Oh, okay. Okay. Nice to know. I have a question, Mahadev. Okay, please go ahead. Are stotras and mantras same? Means in few stotras,
What all you have said about mantras, the Keelakam, everything, the Adhishtana Devata, everything is there. Are they same or different? No, they are different. And the second thing is, what about Sahasranamas? Okay. I heard that from one guru, there are 1,000 granthis inside the body. And when you hear the Sahasranamas, it is meant to open all the granthis so that the Shakti flows well inside the body. Absolutely. So in southern states, we are generally used to read the stotras. Yes. We are in pujas, what we do is we repeat few stotras every day. But even though we have been repeating it for many years and all, there won't be much changes in lives. Like for example, we do Sahasranamas daily, but does the 1,000 granthis open just by reading it? Okay. Or it should be from Guru so that it will be Falashruti happens to that. Yeah. So Himavinduji. So stotram, mantras, and sahasranamas, right? Yes. And despite you doing it since for a long time, whether it benefits, not benefits, if it benefits or not, you don't know. Yes, Then, ma'am. okay. So these are the questions? Yes, ma'am. Yes. Okay. So stotras and mantras. Stotras can be said as those are praising words. Okay. Mantras are invoking words. Okay. Okay. One thing, I say 1,000 things about you. You are a good person, you are a great person, you can do this, you can do that. ये क्या हो गया? ये आपका स्तोत्र हो गया. Yes. But if I call you with your name, वो मंत्र हो गया. Okay. Okay. So are you understanding that? This is as simply एक छोटे बच्चे को अगर आपको समझाना है, because if we go into the way of exactly identifying like what stotra is, what mantra is, it will again go into complexity. Okay. As simply as that, what we are saying, one is description, Yes. one is invocation. So when you want to invoke a particular deity, you go for the mantras. But you just want, you are just happy, you are just thankful, you sing the stotras. When it comes to those 1,000 names, sahasranamas, okay? As you rightly said, in our culture, we have a very scientific way of understanding this would be, have you heard of this called as Nada Brahma? Nada Brahma means, Nada means what? Vibration. Brahma means the Brahma that is vibrating, or the entire cosmic creation that was created by the vibration of the Brahma, and it is also called as the Nada Brahma. Then there is one thing in your name also, Bindu. So Bindu Nada Brahma is also there. But let's talk about the Nada Brahma here. Why I want to talk about Nada Brahma here is, a Nada means a frequency, a vibration. And we all understand the entire creation of this world is vibrating. Everything, हम जिस चीज को भी देख रहे हैं वो सारे चीजें vibration के जरिए. If the table that in front of me is there, it is just in its shape because it is vibrating in a certain way. अगर इसका vibration बदला गया, if I change its vibration, the shape of it will also change. Yes or no? Let's say I take a hammer and hit it hard. What did I do? I changed the frequency in which this table was vibrating. Then what did I do? I changed the vibration. It might break, it might bend, it might, something will change into that. Yes or no? Or else, in a very simple way, if you want to see it, if you are sitting by the lake, the water is very still. You take a stone and throw into it. You create ripples in that. Is it not? Why? Why the ripple was created? Because you threw something that has a different vibration to that, and that vibration changes the frequency of the pond as well. And here in this case, when we are talking about the Sahasranamas, so we know certain words that you speak comes from the tongue,
Certain words, when you speak, it will touch your upper palate. It will come that way. Some words will come from your belly, some from your heart, some from your throat. So different kind of words that we use in Sanskrit language has a different kind of point from which it is coming. That's what I said, the bindu nada. Bindu means from the point from which it is connected, the connotation of that particular word. जब आप वो शब्दों को जिस तरीके से आप कहते हो, वो जिस जगह को वाइब्रेट करता है. ये जितने भी नाम लिखे गए हैं भगवान के, सहस्त्र नाम के, उसमें अगर आप व्याख्या करने बैठो, you will find that the name connotations are also of different patterns. And when of the different patterns, it activates a particular part of your body. And yes, it also works in that way. That means when you are doing a continuous mala, a jap, a sahasranam, it has an impact at your body because you are creating a certain kind of vibration, and that vibration is changing the vibration frequency of your body as well at the level of the cells. Means at the cellular level itself, it is creating the vibrations. So when you said that whether it can have an impact on it or not, absolutely right, it does. And if you want to understand that, if I say a few good words to you, you will be so happy. And if I say a bad word to you, can you see how it changes everything within you? When a single syllable, a single word can change your mood. Now just think of those mantras, those have been worked out by millennia, by greatest of the greatest sages. What kind of impact can they have on your body? And obviously they should have a good impact on you. Okay, Himabindu ji? So any additional thing to that? Yes, Mahadev. Yes. In Dakshinamurti Stotra, Okay. I read one stanza, but I couldn't understand it. Can I ask that? Yeah, please go ahead. Angushta Tarjani Yoga Mudra Vyajena Yoginam Srutyardham Brahma Jivaikyam Darsayan Yogyata Siva. Are they speaking about a particular mudra to be kept? Not hold up a good thing in that, because people just read it, they don't understand in that part. Exactly. There is an indication about that. Because every particular deity that you call upon, you remember I've been speaking about, like, let's say, if you remember just few days ago, I was talking about sitting and facing to a particular direction. And whenever we give a mantra or we do a puja, I always indicate about a particular direction. Yes. You know why? Because again, that vibrational frequency, that point of it, just like this, radio and the centers. Okay. So these particular kind of mudras also have that kind of impact. If you look at the fingers, all 5 fingers all together, what does this 5 finger indicate? These are the indication for the 5 elements that you deal with. What are the 5 elements? The fire, the space, air, fire, water, earth, all the 5 elements. So when you are making a combination of all those things, you should know what combination is working for what reason. Okay. And that's how the mudras are made. If you just want to see the Yog Mudra, it's very simple. ये योग मुद्रा कहते हो ना आप? Why do you call it a Yog Mudra? Have you ever questioned that? You are calling it a Yog Mudra because you are combining the air and the space together. When you are combining air and space together, what you are doing, you are focusing on your breath, but you are expanding yourself into the space. So what happens? You reach out to a place of serenity very easily, to nothingness. When you transcend into nothingness, योग मुद्रा इसलिए सबसे सरल तरीके का मुद्रा आपको दिया जाता है, so that you combine both the elements of space and air together, and now you sit and you do the jap. But there are others when you do, and there are 2 kind of mudras also, 1 mudras also, and there are 3 at all together.
So, Ima Binduji, when you are talking about the Dakshinamurti Stotram, there is a particular kind of mudra that should be employed when doing the puja of his. Indications are there. The only thing is, I really want to get into that deep. If you get, it's so amazing. So, Ima Binduji, anything else? No, Mahadev. These are the Okay. questions. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Ima Binduji. Abaji, please unmute yourself. प्रणाम गुरु जी। प्रणाम आबा जी, कैसे हैं? बस कृपा है आप। हरि भाई प्लीज। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू हरि भाई। गुरु जी, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, मुझे पता है कि दो दो लाइन में आप मुझे संतुष्ट कर देंगे, बट मैं पूछना शुरू करूं? बिल्कुल। हाँ, एक तो गुरु जी क्वेश्चन ये आ रहा है कि जब मैं रामचरितमानस का पाठ कराया तो उसमें भी एक शब्द आया है कि सुनो राम भावी प्रबल, है ना। और शिव भी जब सती जी की परीक्षा के लिए बैठ जाते हैं, सती जी परीक्षा लेने गई हैं, तब भी उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। तो गुरु जी वो भावी क्या है कि जब हम अपनी होनी और भावी इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो क्या शिव और राम जैसी शक्तियों में भी इसको टालने का सामर्थ्य नहीं था क्या? Okay. So, कैसे, like it is really a question to be answered. So, इसमें भी क्या शक्ति है कि वो, बोलिए फिर आभा जी और एक बार। होनी भावी क्या 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 था, ये सब क्या था, और अगर क्यों नहीं टाला उन्होंने? क्योंकि गुरुजी मैं थोड़ा सा आगे और बोल दूं क्या? बोल दीजिए। अगर सती जी राम की परीक्षा लेने गई थी तो सीता का रूप ही क्यों बनाया उन्होंने? परीक्षा तो किसी और तरीके से भी हो सकती थी, और इसके पीछे उन्होंने इस पब्लिक को क्या उद्देश्य, उनका उद्देश्य क्या था, क्या उन्होंने पेश करना था, क्या उदाहरण देना था उनको? क्योंकि वो किसी और तरीके से भी तो परीक्षा ले सकती थी, और शिव को तो सब कुछ पता था, और फिर उन्होंने प्रेरणा देके झूठ भी बुलवा दिया सती जी से। ये क्या था? ये सब क्या है? यही तो प्रपंच है। हाँ, ये प्रपंच जब शिव और राम जैसी शक्तियां भी इसको नहीं संभाल पाई तो हम जैसों की विषाद क्या है फिर? ये होनी और ये भावी, यही शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो ये क्या है? होनी और भावी क्या है ये? ओके। Now, when we talk about these, especially ये से शब्द जो लिखे गए हैं, जो मतलब कभी कभी आपको अपने अंदर से ही, जैसे आपने सवाल पूछा कि जब राम और शिव ही टिक नहीं पाए तो हम कहाँ, लेकिन उससे पहले आपने और एक शब्द कहा बाजी, उनको तो सब पता था। उनको तो सब पता था। तो नाउ अब मुझे आप बताओ कि जब आप बच्चों के साथ खेलने जाते हो, खेलते हो कि नहीं बच्चों के साथ? You play with kids? Okay. So when you play with kids, you play like a grown up? आप बड़े बड़े के जैसा खेलते हो या बच्चों के साथ बच्चे बन के खेलते हो? नेचुरली बड़े जैसा ही खेलेंगे। और कभी कभी आप घोड़े भी बन जाते हो, गधे भी बन जाते हो। तो क्या मैं ये कहूं कि वो बच्चे के सामने आप टिक नहीं पाए? Can I tell that you could not stand in front of the kid and the kid was more powerful than you and you became a donkey and a horse in front of it? सही है, लेकिन गुरुजी यहाँ पे विषाद की बात ही नहीं है. It's not about what Shiva or Ram was. It's so about the requirement of that play which they played. अच्छा, वो
उस रचना, उस जो लीला का जो भाग था, उस लीला के हिसाब से वो कर दिए। आप जैसे हम घोड़े बन के चलते, हम सच में घोड़े थोड़े ना बन गए, लेकिन हम एक्टिंग किसकी करते हैं? घोड़े की एक्टिंग करते हैं। एंड वी जस्ट पुट द किड्स ऑन अस एंड वी से ओके लेट्स कम ऑन राइड इट। सिमिलरली उसमें से when you became that also, did you forgot who you really are? You never forgot. You just wanted to give a experience to that kid, and in order to give that experience to that kid, you changed a way you are. इसमें आपकी कोई हार और जीत की बात ही नहीं है। ये तो देखने वाला सोच सकता है, वो बच्चा समझ सकता है कि मैंने अपने पापा को घोड़ा बना दिया। If that kid thinks that I have made my father donkey today or a monkey today or a horse today, it is because of his limited understanding. But from the understanding of you, आपने उसके खुशी के लिए आपने वो कर दिया। Was there anything apart from that? Even in this case, what you asked, आपने जो पूछा, आप बताइए अब शिव और राम की क्या विषाद है? विषाद की बात ही नहीं है यहाँ पे। नहीं गुरुजी, उन्होंने कहा सुनो राम भाभी प्रबल, तो ये सिर्फ क्या हमको बताने के लिए? वशिष्ठ जी जैसे कहते हैं ना, आपको तो सिर्फ ना क्या आभा जी इंडिकेशन दिया गया है कि अगर उनकी ऐसी परीक्षा ली जा सकती है तो आपकी भी ऐसी ऐसी परीक्षाएं ली जा सकती हैं। सो बी केयरफुल। ठीक बात, सही। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया जो आप नहीं सीख सकते और बच नहीं सकते। वो कहते हैं कि जब परीक्षा लेने की घड़ी आती है तो सबसे टफेस्ट परीक्षा लेनी जाती है, लेकिन देखो ये रूप में भी आ सकता है, ये रूप में भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। नाउ इफ यू आर रीडिंग दैट यू विल ऑल्सो बी रेडी टू कैच होल्ड ऑफ दैट जब वो उस रूप में आता है, ताकि आपसे वो बच के ना जा सके। वो किसी भी रूप में आए आप उसे पकड़ लो। अगेन ये सब क्या है? इंगित है। तो इससे अपने आप को छोटा करने का जरूरत नहीं, इससे हमको सीखना है कि ये स्वरूप में भी आए तो भी हम उसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं। मतलब जीवन जीने का तरीका बताया है। एब्सोल्युटली। अच्छा गुरुजी, ये तो बहुत अच्छे से समझ में आया। हाँ, नहीं तो फिर घोड़ा बना देंगे आपको। हाँ नहीं बिल्कुल। किसी ने मुझे बोला था, मतलब ऐसे होता है ना, 4 लोगों के बीच में डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने उस बात को नहीं माना, बट मुझे लगा मुझे आपसे पूछना चाहिए। ओके। कि अगर तो अगर माने नहीं, घर लेकिन में, यहाँ आके पूछ रहे हो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जी गुरुजी, चलो पूछिए। हाँ गुरुजी, यदि कोई 12 अंगुल से बड़ी मूर्ति घर में प्रतिष्ठित नहीं है, हमने प्रतिष्ठा नहीं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है, हम उसको ऐसे ही रख के उसकी पूजा कर रहे हैं। जैसे हम कहीं से मूर्ति लाए और हमने उसको इस मंदिर में बैठा लिया और अब उसकी पूजा करने लगे। तो क्या किसी आत्मा में इतनी शक्ति है कि उस मूर्ति में प्रवेश करके हमारी पूजा को ग्रहण करने लगे, अगर वो प्रतिष्ठित नहीं है तो? ओके, उत्तर नो है। बस इतना काफी है? मुझे लगता है कि नो है तो बस काफी, क्योंकि जो आत्मा है वो प्रवेश करने के लिए जो तत्वों की जरूरत होती है वो सारे तत्व उसमें इन नहीं चीजों में नहीं है। है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ही वही होता है कि उसके अंदर जो प्राणदायक तत्व नहीं है उसको स्थापित करना। और जब वो ही नहीं है, वो कोई घर नहीं है, वो कोई डब्बा नहीं है कि जिसके अंदर आप कुछ भी रख लो। सो इट डजंट वर्क इन दैट वे, उस तरीके से काम नहीं करती। लेकिन कुछ सारे चीजों में उन सारे चीजों की इस्तेमाल किया जा सकता है। वी यूज इट इन ए सर्टन वे, उसको कार्यरत किया जा सकता है, लेकिन उसकी भी विधिवत तैयारी और पूजा करनी पड़ती है, नहीं तो नहीं होगा। एंड मोर देन दैट, certain creatures, means spirits, you can tell that they are prohibited to take certain shapes, कुछ तरीके के रूप नहीं ले सकते वो। अच्छा। So you need not worry on that part. What अगर आपने मना किया है तो बिल्कुल सही किया है, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा गुरुजी, एक चीज और है कि मेरे घर में एक स्वयंभू मूर्ति है गणपति की। वो आंख के 12 साल तक लगने के बाद उस आंख की जड़ में से प्रकट हुए। ओके।
वो आग के गणपति घर में प्रतिष्ठित हैं, मैंने उनकी प्रतिष्ठा कराई। तो खैर मैं अनुभव नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या वो आदेश और निर्देश दे सकते हैं मुझे, और मुझे उसको पालन करना चाहिए? बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते। अगर स्वयंभू जो भी है, वॉट एवर वी कॉल अ स्वयंभू, है क्या, मतलब स्वयं प्रकट हुए, वो स्वयं प्रकट होने का कारण क्या है? दैट मीन्स देयर मस्ट बी अ सर्टन इंडिकेशन और अ मैसेज दैट हैज टू कम थ्रू दैट प्लेस। और अगर आप उनकी श्रद्धा उतनी ज्यादा है आपकी उसमें, और उतना भरोसा और विश्वास है, तो मूर्ति तो बात नहीं करती है। हाँ, वो लेकिन किसी ना किसी, मूर्ति हाँ, अपने आप को किसी के जरिए प्रकट कर सकती है, बिकॉज इट इज अगेन ऑल इन द क्रिएशन फील्ड। जैसे लेकिन गुरुजी, आपको एक सोच आता है, एक चेतना जागती है आपके अंदर, हाँ, कोई इंट्यूशन तो आ रहा अगर है। इंट्यूशन आ रहा है, इट उसको भी एक परीक्षा कर सकते हो। कैसे? जैसे कैसे? हाउ विल यू रियलाइज दैट वेदर इट इज रियली अ इंट्यूशन और जस्ट अ थॉट प्रोसेस, कि सच में क्या मुझे कोई प्रेरणा मिल रहा है, या मैं बस सोच रहा हूं कि मुझे प्रेरणा मिली। हम्म। यही है ना? यही है कि वो देखो, मेरे विचारों की उपज है, या वो उपज है या उनका सच आदेश। में ये आदेश है। यही है हाँ, ना? ये आदेश, हाँ, ओके। यही है। तो यहाँ पे बहुत ही सरल तरीके से समझा जा सकता है इसे भी। हम्म हम्म अगर मेरे मन की उपज है, तो ये मुझे घुमाता रहेगा, इट विल कीप ऑन सेइंग अच्छा अभी नहीं हुआ, आगे होगा, आगे होगा, आगे होगा। लेकिन अगर आदेश है, और आदेश कहा गया कि ये इस दिन होना ही है, और वो उसी दिन हो जाएगा। देयर इज अ ट्रुथ टू दैट, क्योंकि अगर वो आदेश है, तो वहां से उसका सच्चाई भी उसके साथ ही आता है। नहीं तो आदेश और सोच में क्या फर्क रह गया आपको? लेकिन अगर आपकी सोच है, एक बार हो सकता है, कोइंसिडेंस हो सकता है, बट बार बार नहीं होगा। एंड व्हेन यू आर रीचिंग आउट टू दैट, और आप अगर उनके सामने बैठते हो और आप उनके साथ बात करके देखो, यू हम्म, स्टार्ट स्पीकिंग। हाँ, एंड हाँ, बोलिए। जैसे मैंने कभी बात करी है, जैसे कभी मैं बैठी हूँ, तो मुझे कभी ऐसे अनुभव हुआ कि नहीं मुझे जाना है, तो मैंने कहा नहीं नहीं, आपको कहीं नहीं जाना है, मैंने बहुत श्रद्धा और प्रेम से आपको यहाँ स्थापित किया है, इसलिए आप नहीं जाएंगे। ये मेरा भाव है, मेरे विचार हैं, जो भी है। तो मैंने कहा अगर सेवा में कोई त्रुटि है, तो मैं उसको कायम करूंगी, आगे से और अच्छा करने की कोशिश करूंगी, बट मेरा भाव और मेरी श्रद्धा पूरी है, तो आप जाएंगे नहीं। तो मुझे लगा कि हाँ, नहीं जाएंगे। मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ, तुम तो नहीं। और देखो, जब उनका प्रवेश हुआ, एक एक चीज है आभा जी, मतलब भक्त और भगवान का रिश्ता, रिलेशन बिटवीन भक्त एंड भगवान, it is so beautiful that even understanding it logically is very typical different, it is समझ ही नहीं जा सकता। and anyways, if it is talking to you in that way, or you are even talking to that, कुछ अच्छे विचार ही है ना। अब जैसे गुरुजी उससे बहुत शायद जोर आपकी से, आपकी सेवा करने का भाव बढ़ जाएगा उससे। हाँ, अब जैसे कभी ज्यादा विचार आता है कि मैं आज मुझे लड्डू खिलाना ही खिलाना है इनको, मुझे कुछ भी करो आज इनको लड्डू खिलाना है। फिर मुझे वो दिन में 3-4 बार याद आया, अगर मैंने मिस कर दिया किसी काम में, मुझे हट गया, तो मुझे याद आएगा कि मुझे लड्डू खिलाना है आज। तो मैं तो तुरंत प्रिपेयर करके अगर उनको लड्डू खिलाऊंगी, तभी जाके यहाँ सेटिस्फेक्शन मिलता है तो कि हाँ, प्रेरणा लड्डू। कहाँ से आई? तो मुझे लगता है कि उनको लड्डू खाना होता है इसलिए मुझे प्रेरणा आई कि खिलाओ भाई आप, भाई, मजे से खिलाओ, और उसको लेके जो बच गया वो आप भी खा लो, नो हाँ, वो तो प्रॉब्लम इन। है वो तो प्रसाद है। खैर गुरु जी, अच्छा है, बहुत बढ़िया। और एक एक और क्वेश्चन बस आखिरी, पूछ लीजिए। कि मैंने बहुत सा चिंतन किया। आप कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, बट ब्रह्म मानने तक तो गुरु जी अहम घुसा जा रहा है अंदर। और फिर वो अहम में क्या होता है कि अ, जैसे कहते हैं ना कि नाम की भूख, जो सफल जीवन में सबसे बड़ी बाधक है। तो कहीं ना कहीं जब मैं आपसे झूठ बोल सकती हूँ, मैं अपने आप से झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि मुझे अंदर से पता चलेगा कि कहीं ना कुछ छोटे से तरीके से, बहुत सूक्ष्म रूप से, कहीं कहीं ना कहीं वो दबी हुई है कोई चीज ऐसी, कि जो मुझे हम प्रवेश करने के लिए रास्ता बनाती है। तो ओके। फिर जब वो प्रवेश हो जाए, तो फिर मैं ब्रह्म कैसे बन सकती हूँ?
ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल। तो ब्रह्म से पहले अहम आ जाता है, हम यही आ है ना? जाता है, यस। अच्छा, इसलिए हम ब्रह्मास्मि कहते, ब्रह्मास्मि हम नहीं कहते ना। हाँ। चलो कोई बात नहीं, उसके भी व्याख्या कर देते। लेट्स टेल यू व्हाट इट इज। हम्म। अहम किसका? मेरा। who's who's that I feeling? Ego. Who's ego? अगर ब्रह्म माना है तो ब्रह्म का अहम हो जाएगा क्या? हम तो Oh, let उसी आत्मा का है जो we will go नश्वर on, है, we जो will go, शाश्वत है। उसके उसके लिए जाएंगे। ईगो किस में होता है, भक्त में या एक नॉर्मल इंसान में? ईगो तो नॉर्मल इंसान में ही होगा। अहम वही है ना, ईगो ही है ना। अहम। ओके, तो इजीली समझने के लिए हम ईगो का बात करते हैं। हु हैज ए ईगो? द पर्सन हु थिंक्स आई एम द डूअर, मैं ही सर्व करता हूं। मुझे अहम कब होगा? मैंने मंदिर बनाया। किसने? मैंने। हाँ। जब आपको पूछा जाएगा 4 बार, आप वो मार्बल के ऊपर 5 बार नाम लिखवाओगे आपका। मैंने गरीबों को खिलाया। मैंने। कैन यू सी, जैसे ओम नमः शिवाय ओम लगता है, वैसे ये मैं और मैं 2 बार आता है उसमें। अब गुरु एक जी। बात देखो, जाएंगे, थोड़ा वेट कर लीजिए। हाँ। सो होल्ड ऑन। So when I'm speaking from that I did it, तो अहम चढ़ेगा। क्या आप करते हो? ठीक है। नहीं, करता कौन है? करने वाला तो कोई और ही है, करवा लेता है मुझसे। करवा लेता है ना। तो फिर आप किस खेत की मूली हो जिसका अहम है आपको? हाँ। नहीं, नहीं गुरु जी, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा मैं ठीक शायद है, और एक बार समझा नहीं पूछ पाई। लीजिए आप। ओके, गो हेड। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे एज एग्जाम्पल मैं एक एक बता समझाना चाहती हूँ अपना क्वेश्चन। बिल्कुल, गो हेड। मैंने आपको एक 2 लाइनें लिख के भेज दी, ठीक है? तो उस लाइन के लिए आपने मुझे अप्रिशिएट करने के लिए या किसी चीज के लिए आपने मेरी तारीफ कर दी, ठीक ओके। है? ओके। उस तारीफ को मैं अंदर तक ले गई, अरे वाह, गुरु जी ने तो मुझे तारीफ कर दी, अरे वाह, मेरा तो नाम हो गया। मतलब ये चीज है, मैं इस तरीके से आपको बताना चाह रही हूँ ओके, कोई बात नहीं, गो कि हेड। वो ओके। ये तो बड़ा रूप हो गया, ये तो नहीं है मेरे अंदर, बट ये जो छोटे रूप में जाता है, ये क्या है? ओके, अब चाहे छोटा हो या बड़ा, अहम तो अहम है। अहम तो अहम है। अहम तो अहम है। और सबसे बड़ा वहम क्या है? कि मुझे अहम नहीं है। यही है ना? एग्जैक्टली, हाँ, बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ा वहम है कि मुझे अहम नहीं है। हाँ। So the person who says I don't have a ego is on the biggest ego trip, है कि नहीं? मुझ में कोई ईगो नहीं है, मतलब मेरे से बड़ा ईगो और किसी में भी नहीं है नहीं। राइट? लेकिन आबाजी, एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि when I am just saying it from my mouth कि मुझ में अहम नहीं है, अगर यहीं से निकल रहा है और मुझे अंदर से पता है कि मैं कितना खुश हो रहा हूं मुझे कौन क्या बोलने से, समझ रहे हैं? तो ये बिल्कुल ईगो पक्का आपका ही है, मेरा ही है। आप ही का है, और किसी का हो ही नहीं सकता। बिकॉज अंदर ही अंदर वो फूल रहा है, इट्स फीलिंग हैप्पी। और मानो जैसे एक बलून है, इट्स जस्ट लाइक ए बलून, राइट? इट्स इन्फ्लेटिंग एंड समबडी अगेन समथिंग सेज यू आर नॉट गुड इनफ, गॉन। ये जो इन्फ्लेट डिफ्लेट होता रहता है ना, जब तक ये चलेगा, इट इज चेंजिंग इट शेप एंड साइज अगेन एंड अगेन, टिल दैट टाइम रिमेंबर ये अहम ही है आपका। देन व्हाट इज दैट? जो अहम मेरा नहीं रहेगा, जिसको मैं अहम ब्रह्मास्मि कहने के बाद भी मेरे अंदर वो ईगो नहीं आएगा कि मैं भगवान हूं, राइट? यही कह रहे हैं ना आप, हाँ, मैं यही। भगवान हूं बोल के आप डिक्लेयर कर रहे हो। मैं तो कहता हूं इंसान होने का घमंड हो सकता है, भगवान होने का घमंड हो ही नहीं सकता। You can have a ego of being a human, but being of a god, you cannot have that ego, because कभी सुना है वो आके बोलते हुए, देखो मैं ये हूं, मैं वो हूं?
इंसान बोलता है मैं ये हूं, मैं वो हूं। और एक बात, जब आपने सब कुछ उसे दे दिया है, when you have devoted everything, आपकी अच्छाई की जाए या बुराई, if somebody praises you or सब समझते हैं। discards you, if you are still feeling that pinch within you, that means you have not left it, अभी भी है वो। हाँ, नहीं छोड़ पाए। और मैंने कहा ना, जो कहता है कि मुझ में अहम नहीं है वो वहम में है। सो इसीलिए दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, I will not say that I don't have the ego, but which ego I am talking about? I'm not talking about the ego of a human. I'm talking about the ego that I carry is not mine anymore. अहम और ब्रह्मास्मि साथ साथ लिखा जाता है। देखोगे, अगर अहम को ऊपर उठाओगे तो ब्रह्मास्मि नीचे आ जाता है, और ब्रह्मास्मि को ऊपर उठाओगे तो अहम नीचे आ जाता है। लेकिन हमने अहम और ब्रह्मास्मि को साथ में रखा है। इन्हें महावाक्य कहा जाता है। महावाक्य क्यों कहा जाता है? कि जिस अहम को लेके आप जी रहे थे, उस अहम को आपने ब्रह्म में परिणित कर दिया। You transform that ego also into God. Then where is your ego now? It is God only. There is no ego. And as Dr. Wayne Dyer used to say, ego means edging God out. भगवान को दूर कर लेना. When that ego has transformed itself completely into the divinity. जब मैं अपने स्थिति में स्थिर हो चुका हूं, अब चाहे वाह वाह हो या हवा हवा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गुरु जी एक बात बताइए कि जब तक मैं उस ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त ना करूं, या जब तक कि मुझे अंदर से ये एहसास ना हो, वास्तविक एहसास, ये नहीं कि सिर्फ आपको बताने के लिए हो, सिर्फ वास्तविक एहसास ना हो कि मैं ही ब्रह्म हूं, तब तक मैं अहम ब्रह्मास्मि कैसे कहूं? बस ओके, चलो कोई बात नहीं, इसको भी डील करते हैं। नाउ टेल मी वन थिंग, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम आभा, आभा ही है, बट सरनेम आभा दुबे। आभा दुबे। कब से है? मेरे ख्याल से पैदा होने के बाद से है, माँ पापा ने रखा है। और किसी घर में पैदा होते तो तब कुछ और नाम होता। लेकिन आभा सच्चाई है या झूठ है? अब जब तक ये शरीर है तब तक आभा सच्चाई है, उसके बाद आभा क्या कोई पता भी है किसी को? आभा सच्चाई कैसे बन गई? ये शरीर है, शरीर के लिए आभा है बस। जो शरीर है तब तक जो शरीर के अंदर जो है उसका नाम क्या है? व्हाट्स द नेम ऑफ द थिंग दैट इज सिटिंग विद इन दैट बॉडी कॉल्ड एज आभा? गुरुजी आत्मा है, आत्मा ही है उसका नाम। अब मैंने तो शुरू से आत्मा ही पढ़ा है, लेकिन वो शाश्वत है इसलिए वो ब्रह्म है। तो आप कौन हो फिर? तो वो अंदर है, वो तो वो है, ब्रह्म है, आत्मा है जो वो ब्रह्म है। तो अंदर मतलब बाहर है, अंदर मतलब आप एक चीज हो, आपके अंदर और कुछ है? नहीं, आभा ब्रह्म तो नहीं कह सकते गुरुजी, हम आभा ब्रह्म नहीं कहेंगे, ठीक है। चलो, नाम किसको दिया गया था, आपको या शरीर को? नाम तो शरीर को ही मिला है। शरीर को मिला था, तो शरीर का नाम क्या हो गया? शरीर का नाम आभा है। ओके, आपका नाम? नहीं, ये तो मेरा ही, मैं कैसे कहूँ कि मेरा नाम आभा है? इस शरीर का ही नाम आभा है, और शरीर में नहीं। मैं भी वही पूछ रहा हूँ, मैं कोई तर्क नहीं कर रहा, मैं बस पूछ रहा हूँ आपको, आपका नाम क्या है? अगर शरीर का नाम आभा है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भी आभा है। व्हाट्स योर नेम? तो गुरुजी मैं यही कहूंगी, मेरा नाम भी आभा ही है। क्या क्या कहेंगे? ऐसे तो ब्रह्म, अभी जब तक हमें उसका अनुभव, उसकी प्राप्ति अंदर तक नहीं हुई है, तो वो शाश्वत रूप का अनुभव नहीं हुआ है, शाश्वत रूप की प्राप्ति नहीं हुई है, कोई तब बात तक नहीं। हाँ, चलो, बहुत बहुत सुंदर सवाल। एक बात बताओ फिर, आप आभा हो नहीं हो ये नहीं पता, शरीर का नाम आभा है ठीक है, बट आपका नाम क्या है ये पता नहीं, आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सके। यू हैव नॉट एक्सपीरियंस व्हाट यू आर, दैट्स व्हाई यू हैव अ डाउट, यू डोंट नो वेदर यू आर एग्जैक्टली रियली ए गॉड और नॉट। आत्मा हो नहीं हो या बस कहानियां हैं, ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट आल्सो। लेट्स स्टार्ट बिगिन अगेन।
ठीक है। फिर शुरू करते हैं। Where did you started? When did you started? आपकी शुरुआत कहाँ हुई थी वो बताओ पहले मुझे। शुरुआत तो जब मैं पैदा हुई तो मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ, मतलब किस सिचुएशन में कहाँ थी। जब ओके, थोड़ा सा बोध हुआ। नो प्रॉब्लम। सो बोध हुआ, उसके बाद पता चला कि आप आभा हो, चलो कोई आभा बात। है। हाँ नंबर प्लेट लगा दिया गया गाड़ी के ऊपर कि हाँ, ये आभा नंबर है। प्लेट जीवन भर के लिए चलेगा, नो हाँ प्रॉब्लम। हाँ हाँ जब शरीर त्याग करोगे तब भी आप आभा ही रहोगे। हाँ, सबके लिए रहेंगे, फिर मेरे लिए तो नहीं। नहीं नहीं, अपने जब लिए तो आप। शरीर त्याग होगा, शरीर तो त्यागोगे ना। बिल्कुल। हाँ, जब शरीर त्यागोगे तब भी आप आभा ही रहोगे। हाँ, सबके लिए आभा रहेंगे, लेकिन मैं अपने लिए हाँ, तो नहीं। आपके लिए, मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं अपने लिए कैसे आभा रह सकती हूँ फिर। अच्छा, तो आप आभा नहीं रहोगे। तो जब तक फिर शरीर है कैसे। तब तक आप आभा हो, वेरी तब गुड। तक जी। हाँ, तो यहाँ तक क्लियर है ना। यहाँ तक जब तक क्लियर है। शरीर, जब शरीर आया एक नाम दिया गया, जब तक शरीर है वही नाम रहेगा। वही नाम रहेगा। ठीक लेकिन है। आपका कहाँ शुरुआत हुआ आपको पता नहीं, लेकिन आपको होश तब आया कि अच्छा मैं ये शरीर में हूं, तब जब होश आया तो अब आप आभा बने। वेरी गुड। जी। तो इससे पहले कहाँ थे ये नहीं पता आपको। नहीं पता। अच्छा, ये शरीर गिरने के बाद आप कहाँ जाओगे। ये भी इस नहीं शरीर के पता। साथ आप खत्म हो जाओगे। चली गई आत्मा, कहाँ जाएगी क्या पता। कौन जाएगा, कौन जाएगा। आत्मा वो कौन है। जो शाश्वत है, जो ब्रह्म है, वही तो। पक्का। 100% तो जब आप पक्का। कहते हो कि आत्मा शाश्वत है और ब्रह्म है, तो आप कौन हो फिर। तो मैं ही तो ब्रह्म आत्मा हूँ, ये तो शरीर है। तो आभा फिर तो अहम शरीर है। ब्रह्मास्मि कहने में आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं तो वो इस शरीर में उस चीज का भान होना चाहिए। मैं कोई झूठ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। देखो, ईगो नहीं तब नहीं। आएगा, आभा जी, ईगो तब आएगा, यू हैव टू एक्सेप्ट वन थिंग। आपने अपने आप को आभा मान लिया है, लेकिन मैं जो चीज बता रहा हूं ना आपको, वॉट एवर आई एम सेइंग, जस्ट थिंक अबाउट इट वंस। एक क्षण भर के लिए, एक क्षण भर के लिए आभा को दूर हटाओ। ठीक है, फिर तो ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो फिर अहम ब्रह्मास्मि बोलने में क्या प्रॉब्लम है। Can you see, when you are Abha and you are saying that I am Brahman, then there is a ego. But when you are the Brahman and you are saying I am the Brahman, where is the ego? बिल्कुल सही है। तो मैं ये कहता हूं, आभा बन के अहम ब्रह्मास्मि मत बोलो, ब्रह्म बन के अहम ब्रह्मास्मि हम बोलो। ब्रह्मास्मि। नो ईगो। फिर गुरु जी धीमे धीमे ये नहीं आ जाएगा कि अब मैं ब्रह्म हो गई हूँ तो अब मैं ये कर सकती हूँ। तो एक काम करना, उसको याद दिलाना, अच्छा ये करके बता कि यहां बैठी हूं और वहां से ऐसे कुछ करूं और वो अट्रैक्ट होके मेरे हाथ में आ जाए। उसको सही शब्द बोलूं, जी। उसको याद दिलाना कि तू शरीर है और तू बिल्कुल। गिरेगा। गिरेगा और ये गिरेगा। जो तू आडंबर कर रहा है ना, ये पूरा प्रपंच जो रचा रखा है ना, ये तू अगर कहे भी तू भगवान है तो तू नहीं हो सकता, लेकिन मैं हूं। यस, एग्जैक्टली यही सही है। हम कैसे माने ब्रह्म, बहुत अच्छे से समझ में आया कि हम अपने आप को ब्रह्म कैसे माने। शरीर से थोड़ा जिस डिटैच दिन, होके हाँ जो भाजी, बचता है वो ब्रह्म है। जिस दिन जान लोगे उस दिन मान लोगे। इसलिए जानते नहीं हो और मानते नहीं हो। नहीं गुरु जी, मानना तो चाहते हैं और मानते भी हैं, बट वो जो। तो अभी याद दिलाना कि आभा कब से है और आभा कब तक रहेगी, और जब आभा नहीं थी तब क्या था, जब आभा नहीं रहेगी तब क्या रहेगा। तो क्या होगा। तो कौन रह जाएगा, वही शाश्वत, नहीं रह वही जाएगा, ब्रह्म। ब्रह्म रह तो जाए। अगर वही शाश्वत है और वही ब्रह्म है और वही मैं हूं जो अपने आप को आभा समझ रखी हूं, तो मुझे आभा को थोड़ा दूर हटा के देखता हूं कि मैं कौन हूं। तब ब्रह्म पता चले, तब कौन बच जाएगा। तभी ब्रह्म बचेगा, ब्रह्म इसीलिए, ही। इसीलिए जब भी रमन महर्षि का बात सुनोगे आप, वो हमेशा वही कहते, नेति नेति, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, मैं ये भी नहीं, मैं वो भी नहीं। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग टू रियलाइज योरसेल्फ इज डिस्कार्डिंग ऑल दैट यू आर नॉट। जिस तरीके से मैं हमेशा कहता हूं ना भाजी, जब एक शिल्पकार, व्हेन ए स्कल्प्टर गोज टू स्कल्प्ट अ स्टैच्यू, इट इज नॉट स्कल्प्टिंग द स्टैच्यू, वो मूर्ति नहीं बना रहा है,
he is removing all that is not the statue. वो सारे चीजों को निकाल फेंक रहा है जो मूर्ति नहीं है, और हमें लगता है कि वो मूर्ति गढ़ रहा है. नहीं, वो मूर्ति नहीं गढ़ रहा. जो Yes. मूर्ति नहीं है वो निकाल दे रहा है उसको. सो आपको अगर अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को जानना है तो आप जो नहीं हो उसे निकाल फेंको. आप ऑलरेडी हो उसके अंदर, और उसके धन्य है अंदर गुरुजी। वही ब्रह्म है. बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्य है हम आपसे इस जवाब को पाके. बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, क्योंकि शायद आबाजी, मुझे इतने आसानी से कोई नहीं समझा सकता था, मैं और वही शायद मैं कहता हूँ ना सेटिस्फाइड भी आबाजी, नहीं. गुरुजी, आबाजी मैं वही कहता हूँ, आप मुझे 1000 चीज कहो कि आप भगवान नहीं हो, और मैं आपको 1,00,000 चीज कहूंगा कि आप भगवान हो. उतना तो कर ही दे. आई विल प्रूव यू बियॉन्ड योर डाउट्स. अब तो मैं पक्का भगवान बन के ही जाऊंगी, जहां भी जाऊंगी. कब जब ये कब शरीर को छोड़ूंगी, पूर्ण आबाजी, ब्रह्म कब से. कब 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 भगवान बन के जाओगे? अभी नहीं हो नहीं क्या? नहीं नहीं, अभी तो भगवान हूँ ही, लेकिन जब इसका त्याग अच्छा, होगा भगवान इस लीला शरीर कर का. रहे, यही कह रहे हो तो? हाँ हाँ. अच्छा, अभी भगवान लीला करे तो लीला करो, नो प्रॉब्लम. लेकिन लीला भी करते हो तो भगवान बन के करो, इंसान बन के नहीं. लिप्त नहीं होना है उस. हाँ, so play like God, play like a pro, not like just a human who is suffering through all these things. You are not just going through all that. लिप्त नहीं. Okay. गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू, बहुत थैंक यू बहुत आपकी. धन्यवाद. हमने Thank आपको you. भगवान बना दिया. एक काम करिए, आज 2 हाँ जी. माला खरीदिए, गले में डालिए, आरती उतारिए अपने आप की ऐसे लेके थाली से, गुरुजी और मैं देखिए यही ईगो फील आ रहा कर है रही कि नहीं. हूँ. और जैसे ही यही. ईगो आएगा उसको याद दिला दीजिए, शरीर मेरी आरती उतार रहा है, मैं हूं. शरीर ब्रह्म नहीं है, शरीर ब्रह्म का भ्रम है. बिल्कुल गुरुजी. It's an accumulation of all that, and one way it is. बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी. शायद ऐसे तो मैं कभी नहीं समझ पाती. आज इतने अच्छे से समझाया, तो आज शायद पूर्णता आ गई. कौन कौन आया? अहम ब्रह्मास्मि. अब तो मैं ही ब्रह्म हूँ. नहीं, आप और कुछ थे ही नहीं. You were nothing else except that. But because of illusion, you have started believing yourself to be something else. So we are not telling you anything. We are just removing what you are not. And when you remove all that, what you are not, that what you are remains. और एक बार बोलो, क्या बोल रहे थे आप? अहम ब्रह्मास्मि. चलो, धन्यवाद, बस हमने अपना गुरुजी. काम कर लिया. थैंक यू गुरुजी. धन्यवाद गुरुजी. बहुत बहुत धन्य हुए आपसे इस जवाबों को सुन के, और मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए गुरुजी. थैंक यू गुरुजी. प्रणाम गुरुजी. पक्का. धन्यवाद, धन्यवाद आपका. थैंक यू, थैंक प्रणाम यू. गुरुजी. प्रणाम. प्रणाम हरि भाई. हरि भाई Thank you. प्लीज मुझे नए ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा. हाँ. मैंने आपके उस पर रिसिप्ट भेज दिया पर्सनल पे. ठीक है, ठीक है, ठीक है. ओके. थैंक यू हरि भाई. Thank you. थैंक यू गुरुजी. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. शांतना कृष्ण जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. Pranam Guruji, Pranam. प्रणाम संतन कृष्णन जी. Guruji, Yes. in my house, I displayed my ancestors' photos and my parents' photos. And one gentleman, an elderly person came, said they Okay. have to be given ascension. And the moment you keep all these photos, you keep on thinking and all. So you have to keep it, you should not display it, you keep it inside. So I kept it. Whether to display it or not, Guruji. That time. What has he given? No, my ancestors' photos and Okay, my okay, okay. parents' photos. I displayed Okay. in my house. So it is facing which direction? Facing east direction, east. So it is on which wall then? West wall, you are saying? West wall, west wall. No, I will just check that on again. So Santan Krishna ji, I will message you back, because that is not the wall where it should be. Whether can we display their You ancestral? can display it. However, there is a particular direction. You see, already Aparao ji is messaging you. He's saying like on the south wall it should be facing north, because jitne bhi all our ancestral things, they should not be facing towards the east or west kind of things. So it should always be facing towards the north on the south wall. South wall. Yes. Then another one question. Yeah. How to bring Kuladevata's blessings in the house? How to bring Kuladevata's? How Blessings. to bring?
You want to say that? Kuladevas, blessings. I got it. जो आपका कुल के देवता जो है उनका how to bring their blessings into house. That's what you want to say? Yes, yes. Okay, very good. See, anyone that all of us, we have a Ishtadev and a Kula Devata, right? So Kula Devata means the one deity that has been, we have been doing their puja for ages and ages. They have been the protector of that realm, right? So in order to invoke them, we all have a ceremony. Every year you might be doing that, right? Throughout the days you do the pujas and all those things. But on a certain particular way, that kind of deity is invoked on a particular day. So if you are doing that, because you know what these Kula Devatas are. These Kula Devatas have chosen their presence with you so that they can be always a guiding force in your life. So especially to deal with the Kula Devatas, it is very easy to get their blessings because they are already with you. So the kind of pujas that has been prescribed for that kind of deity, if you do that, that is enough. What sort of puja? So you have to find out, like when you are saying it is your Kula Devata, that means there must be a prescribed way of doing a certain puja of them. Okay, Guruji. So if you find that out, if you do that, that is enough. Because they are the closest to us, what we call as divinity. Kula Devata or Ishta Devata are the closest things that we can actually access them. So the only thing is we have to know the prescribed way of invoking them. So there must be someone in your family or in your nearby who knows how to do the puja of that particular deity. Because one thing, Sandan Krishnanji, as many families we have, as many traditions we have, that many Kula Devatas also we have. And everything is invoked in a certain way. So if you find that out, it works the best. I will find out, Guruji. Sure. So that's how it will help you also. And yes, to Yeah. all of us, what I would like to say is, whatever deity you have gone to today, no problem. If you are talking about Shiva a lot, no problem. But at the same time, never forget to thank your Ishtadev and your Kula Devata. Because it is because of their blessings, you are able to evolve to a certain level where you are experiencing all these things in your life. उनका बहुत ही बड़ा महत्व है. It's just like this. The ABCD, the teacher who taught you ABCD, I think they were much more important to me rather than just a person who taught me a history class. Because I could not read, could not write if I would not have learned that ABCD. See, the person who taught me history has his role. But if I have not learned ABCD, so that's where our Kula Devatas come, our Ishta Devatas come. So never forget them. Do their puja in the best possible way. And their blessings will always be there with you. So Santan Krishna ji, find out. If we are not able to find out, we will find a common way of procedure through which you can do the puja. Okay, Guruji. One more question, Guruji. Please. These Amavasya days, the ancestors, we have to give Tarpanam, isn't it? What is the importance of it? Amavasya days, why you do the Tarpanas? That's what your question is? Yes, sir. Yes. Okay. See, every, let's understand this way. Let's say the room that you are sitting. Okay, there are certain doors into your house. Yes. To other rooms as well, right? Yes. Let's say you have triggered a particular kind of security system because you were in army, so you'll understand this very well. Let's say you have triggered a particular kind of security system through which at this particular time the door opens and within this time frame it closes down. Yes. Those are the security systems that we talk about, Yes. right? So when we are talking about those Amavasyas or the Kalaratris or the specific nights that we are speaking about, these are just like the time frame in which that kind of doorways are opening. So whatever you want to, just like if the door is opening through that time, if you want to enter into that part, you have to enter in that time and you also come out in that time as well. So it's just like
a person is in that room and I want to pass on something to them. I cannot pass it through the wall. I cannot pass it through the door when it is closed. So what should I do? I should wait for that particular time when the door is opening. So I just push it away. So what happens? It reaches to the desired place. So these are like in time frames, the doorways open. It's as simply you can understand that. So these specific days, nights are designed in that way so that when the doorways, the alignment of that is there. And that's how you go through that. And this helps you to get the maximum benefit of what you wanted to do. Okay, Sandan Krishnan ji. Thank you, Guruji. Thank you. Thank you. Thank you so much, Sandan Krishnan ji. Thank you so much. Thank So you. with this, I believe, Haribhai, we are done with the question and answers also for today. So good. So very good questions for this day, and so really some amazing ones. Would like to thank each and every one of you for bringing those kind of questions. So, and I, as always, आभा जी का थोड़ा ईगो बढ़ा देते हैं सुधा जी. देखो, आभा जी के सवाल बहुत अच्छे थे. Now, आभा जी, how do you feel? If you feel like good, समझ लेना है, उसको याद दिलाना. Stay in your limits. Right? Sudha ji. Please unmute. Yes, Sudaji. Please unmute yourself. प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन चाहिए। जैसे अभी ये बात हो रही थी श्रोत मंत्र सहस्त्र नाम, लेकिन हम जहाँ तक ये बताया गया है कि ईश्वर के पास आप भाव से आई है, तो ये सब क्या ये सीढ़ियां हैं क्या? बिना इनसे हम डायरेक्ट भाव मन में आता नहीं है ईश्वर के प्रति जाने के लिए। ओके, चलिए कोई बात नहीं। यू सी, व्हेन ये सारे सीढ़ियां हैं कि नहीं? यस, देयर आर स्टेयर्स। फर्स्ट एंड सिंपल क्वेश्चन आंसर है उसका, दीज आर काइंड ऑफ स्टेयर्स। जब आप पूछते हो कि क्या ये इसके बिना भाव नहीं आता, इसके बिना भाव आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। बट व्हेन समथिंग इज क्रिएटेड इन ए ग्रैंडियर वे इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने एक बृहत रूप से आपके सामने बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको पूछूं कि भगवान दिखता कैसे है? अरे भाई, गुरुजी को स्क्रीन पे कि भगवान दिखते कैसे हैं, सो देन व्हाट विल यू डू? हाउ विल यू डिफाइन गॉड देन? किस रूप में वर्णन करोगे उसका? वर्णन करने का बात नहीं कर रहा हूं मैं, वर्णन करने का बात कर रहा हूं। सो हाउ विल यू डिफाइन दैट गॉड शुड बी लाइक दिस? जैसे हमने मंदिरों में देखा है या उनकी तस्वीर देखी है। कैन यू सी दैट व्हेन यू आर सेइंग ए सर्टेन वर्ड, इट इज डिस्क्राइबिंग दैट। जब वो डिस्क्रिप्शन आ जाता है तब हमको भाव भी उसी तरीके से जागने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई टेक द नेम ऑफ संकल्प, क्या भाव आया आपके अंदर? एक इमेज आएगी उसकी। Now for you the image of sankalp is different, for all the other people in the room the image of sankalp is different. पूछ लो, मैंने जैसे ही संकल्प कहा, इन्होंने पूजा विधि के बारे में सोचा होगा, लेकिन सुधा जी के बेटे का नाम संकल्प है तो वो क्या सोचे होंगे? बेटे के बारे में सोचेंगे। तो भाव क्या जागा आपके अंदर? What kind of emotion did it rose within you? मुझे एक मातृता भाव आ गया आपके अंदर। हाँ, ठीक है। अरे मेरे बेटे के बारे में बात कर रहे हैं। बट फॉर अदर पीपल वो उस तरह से सोचेंगे किस पूजा की संकल्प करना है या कैसे करना है। Can you see? So your relationship, in order to create that relationship, आपके उसके साथ वैसे भाव जोड़ने के लिए ये सारे चीजों का वर्णन किया जाता है। नहीं तो है तो बिल्कुल ही निराकार। लेकिन निराकार की व्याख्या क्या करोगे आप? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। निराकार से रिलेशन बना सकते हो? अच्छा गुरुजी, हमारे धर्म में तो हम उसको एक साकार रूप देके फिर निराकार की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी। लेकिन दूसरे उसमें कोई साकार का वो महत्व ही नहीं बताया गया। उन्हें यही बताया गया है कि वो निराकार है, एक लाइट है, आप उस तरह बढ़ो बस। अच्छा, एक सवाल तो पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। एक सवाल पूछना, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि हम इसको एक स्वरूप देते हैं फिर हम कहते हैं कि निराकार है। बाकी कोई भी रिलीजन में ऐसा नहीं है। दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग। एक रिलीजन बताइए जिसमें साकार रूप नहीं है।
अब जैसे आप मोहम्मद को ले लिए, मुस्लिम में कोई फिर साकार रूप मस्जिद नहीं क्या है, है? उनके यहाँ तो मूर्ति फिर रखना भी। मस्जिद क्या है? फिर जिसके सामने जाके वो नमाज करते हैं वो क्या है? जिन्हें बनाया तो पीर उन्होंने, मानते हैं वो क्या है? बनाया तो उन्होंने भी कुछ भी छोटे है, ये छोटे बात तो आपसे। बनाए हुए हैं, वो सब क्या है? मानते तो आप उसको भी हो, यू ऑल्सो बिलीव इन दैट, द ओनली थिंग इज यू आर डिनाइंग इट। और कोई रिलीजन बोलो जिसमें नहीं माना जाता। There is no religion that doesn't believe in a form, and you cannot deny the form, Sudhaji. I'll tell you why a form cannot be denied. When the God himself has created all the forms, how can I deny the form of God? जब संपूर्ण रचना ही उसने इस तरीके से कर दी है, तो उसने अपने आप को भी तो अभिव्यक्त किया होगा किसी रूप में। हम उसी रूप की बात कर रहे हैं। अच्छा गुरु जी, एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन और चाहिए। ओके मान लो एक कोई बंदा है, ओके बहुत छोटी सी जगह से है, पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ नहीं, वो ओके मंदिर में जाके रोजाना हाथ जोड़ के बैठता है केवल। ओके और एक दूसरा बंदा है जिसको स्रोत मंत्र श्रेष्ठ नाम सब कुछ आते हैं और वो विधि विधान से पूजा करता है, तो उस परम ब्रह्म तक पहले पहुंचेगा कौन? और कौन पहले दूसरा, पहुंचेगा? हाँ, किसकी सीढ़ी मतलब ऐसी है जो फटाफट पहुंच जाएगा? जिसकी चाल तेज होगी वही पहले पहुंचेगा। अब चाल क्या मतलब क्या है? द पर्सन हु वॉक्स फास्टर विल रीच देयर। आपके सवाल का जैसा सवाल वैसा जवाब, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि पहले पहुंचेगा कौन, राइट? सो इफ समबडी इज डूइंग ऑल द जाप एंड मंत्रस, लेकिन कई घर में मैं जा चुका हूं सुधा जी, मेनी हाउसेस आई विजिटेड, इफ यू गो टू देयर हाउस अर्ली मॉर्निंग, विष्णु सहस्र नाम, रामचरितमानस चल रहा है, या तो कुछ प्रवचन चल रहा है, या तो कोई भी भजन चल रहा है। ठीक है, ओके, भजन तो चल रहा है लेकिन घर में मंजन कुछ और चल रहा है। पीपल आर लिसनिंग टू विष्णु सहस्र नाम, बट एवरीबडी इज बिजी डूइंग देयर ओन वर्क। हे, दिस इज नॉट गुड, दैट इज नॉट गुड। एनी इंपैक्ट ऑफ दैट? ये तोताराम है, रटा रटाया बोलना। आप जानते हो एक बात, if I take my son right now, instead of teaching him what he is studying in his school, he is fluent in English what he is studying, right? If I stop that and I only give him to read all that he has to, all the shlokas, all the mantras, will he again speak it with the same fluency or not? पंडित हो जाएगा। पांडित्य अलग चीज होता है और पंडित वो समझ के, उसे जान के वहां तक पहुंचना अलग चीज होता है। ऑफ कोर्स जो मुख से बोलता भी है और अंदर से मानता भी है, उससे बड़ी अच्छी चीज नहीं हो सकती। ये तो भाग्यशाली लोगों को मिल जाता है, मैं कह सकता हूँ, कि जो मुख से भी उसका उच्चारण कर सके और अंदर भी उसको बिठा सके। नहीं तो ये खाली बोल बोल के इट्स लाइक, आपने एक कॉमेडी सुना होगा, डब्बे के ऊपर डब्बा, डब्बे के ऊपर और एक डब्बा, डब्बे के ऊपर और एक डब्बा, और एक डब्बे के ऊपर और एक डब्बा। इट जस्ट कंटिन्यूस लाइक डब्बा एंड डब्बा। क्या होगा उससे? एक डब्बे का मकान कितना दिन ठहरेगा? हाउ लॉन्ग कैन इट विथस्टैंड वन स्टोन? सो अगेन कमिंग बैक टू एवरीथिंग, भाव। आपका भाव ही वहां तक पहुंचा सकता है। और अगर आप भावपूर्ण भक्ति से, अगर आप यू आर सेइंग द सेम मंत्रास आल्सो, इट विल हैव इमेंस पावर इन इट। आपने तानसेन का नाम सुना है, राइट? आप ही के सुना, जगह पे हुए होंगे। So तानसेन जब गाना गाते थे, so we all know, like when Tansen used to sing, he can light up the can, like दिया जल सकता था, बारिश हो सकती, सब कुछ बारिश हो हो सकती। सकती थी, मेघ मल्हार गाए तो बारिश होती थी, राग दीप गाए तो दीप जलने लगते थे। दीप जलने लगे।
So one fine day, Akbar asked him that let us go and declare that you are the best in the world. तेरे जैसा कोई गायक है ही नहीं. Nobody can sing like you. Then Tansen says, I cannot accept that. Then Akbar says, why can't you accept that? Because in your singing, it is the rain comes with your singing, the candles are burning with your singing, we feel ecstatic with your singing, we feel so sad, everything happens. Then why are you not able to take that? वो ओहदा क्यों लेना नहीं चाहते आप? Why don't you want to take that? Then Tansen says, you have only heard me, you have not heard my guru's voice yet. आपने मेरा गान सुना है, मेरे गुरु का गान आप अब तक सुने नहीं. अगर आप उनका गान सुनोगे तो आप मुझे भूल जाओगे. You will forget me if you listen to his voice. Then Akbar क्या कहते हैं? Okay, then bring him to my court. Tansen says he won't come. No, I am the Sahenshah and all those things. आभाजी याद है ना, मैं शहनशाह हूँ. That's what it is talking. तो मैं शहनशाह हूँ और मैं उनको बुला रहा हूँ, वो आएंगे. वो बोला बिल्कुल नहीं आएंगे. He will never come. No, tell him that I want to listen to his song. और शहनशाह उसकी गाना सुनना चाहता है. And I will give him lot of things. Tansen says he is not Tansen that he will come and sit here and sing for you. He only sings and only sings for God. और ये हकीकत है, ये माना लाइक इन इतिहास के लिफाफों में दर्ज है कि लाइक तानसेन के साथ अकबर खुद गए in a common way, because Tansen said if you go like a king, he will never sing. He went as a friend of Tansen, as a commoner, and he went, and then his guru sang. उनके गुरु कौन थे? तानसेन के गुरु? Anybody knows? जहाँ तक मैं जानती हूँ वो तो ईश्वर को अपना गुरु मानते हैं. कौन? नहीं, जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो तो ईश्वर को अपना गुरु मानते हैं. उनके संगीत के भी एक गुरु थे, और उनके जो संगीत के गुरु थे वो सिर्फ कृष्ण के लिए ही गाना गाते थे. आपके लिए टास्क ये रहा कि ढूंढ के लाके मुझे बोलना कि उनके कार्तिक जी धन्यवाद. एंड एट द सेम टाइम सुधा जी जाके सर्च भी करना. तो जाके एक बार सर्च करो कि तानसेन के गुरु कौन थे. और तब अकबर वेंट एज ए कॉमनर, एंड देन तानसेन से लाइक अकबर सेड टू तानसेन, please ask him to sing. Still he says he won't sing. He will sing when he feels like singing. You have to wait. और तब क्योंकि ये कहा जाता है कि वो जब गाते हैं, सर्च करूंगी, वो जब गाते थे तब कृष्ण प्रकट हो जाते थे. और बताओ, एक गाना है जिससे बारिश होता है, एक गाना है जिससे दिया जलता है, और एक गाना है जिससे कृष्ण प्रकट हो जाता है. कौन सा प्रभावशाली है? Which one is more? स्वामी हरिदास. See, now there will be many names that will pop up. उनका नाम ही हरिदास है. So he only sings when he feels like Krishna came, and now he sings. So यहाँ क्या हो गया सुधा जी? अगेन द सेम थिंग, भाव आ गए. गाना तो वो जो गाते थे तानसेन भी गा सकता था, लेकिन उसके गाने से कृष्ण नहीं आते. वृंदावन में जो प्रकट हुए बाकी बिहारी, वो किसके उससे प्रकट हुए थे? किसके गाने से? अब आपके बांके बिहारी को पूछ के ही बोलेंगे हम. क्योंकि क्षमा करे वो हम नहीं थे. कुल मिला के
इसका कंक्लूजन जहां तक मेरी समझ में आया है ना, स्रोत मंत्र सहस्त्र नाम ये सब भी आपको नहीं आते हैं, तो अगर भाव से आप उसका नाम भी ले रहे हैं तो वहां तक आप पहुंच जाएंगे निश्चित रूप से। और कुल है मिला क्या, के कुल मिला के इतना ही समझ में आया। एब्सोल्युटली आपके भाव से पत्थर भगवान बन जाता है। क्योंकि कभी कभी लगता है ये जो हम मंत्र पढ़ रहे हैं ऐसा तो नहीं इसमें गलतियां हो रही हो, तो दिमाग तो उस गलती में अटका रहता है, वो भाव तो किनारे हो जाता है। इसका मतलब मंत्र से बढ़िया उसको मन से याद करें। अगेन अगेन द सेम क्लासिकल एग्जांपल सुधा जी, एक छोटा सा बच्चा है जो आपका नाम बोलना नहीं जानता, but it is running towards you calling something else that your name is not. बड़ा अच्छा नाम से बुलाया जा सकता है आपको, जानते हैं? अगर एक छोटा सा बच्चा भाग के आ रहा है और सू 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 बोल के आपके पीछे भाग रहा है, आप बोलोगे अरे सूसू क्यों बोल रहे हो, या अरे इतना छोटा सा बच्चा मेरे तरफ भाग के आ रहा है उसे उठा लोगे? सो इट्स एज सिंपल एज दैट। जब मंत्र भी पढ़ते हो ना, बच्चे बन के पढ़ो, बिकम लाइक ए किड एंड देन डू द जॉब। फिर इसीलिए अंत में आप कहते हो ना, पूजा ना जाना मी ना जाना मी मंत्राण। तो मुना मुझे मंत्र आता है ना मुझे पूजा आता है, लेकिन मैं जो कुछ भी आता है मैं तेरे को वो सब कुछ समर्पित कर देती हूँ। मंत्रीण क्रिया है, सही है। फिर थैंक दैट्स यू। हाउ यू डू इट। धन्यवाद। और सुधा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसी थैंक यू बहुत। सवाल जवाब के चक्कर में हम अच्छे से नहीं, आपने अच्छे से समझा दिया। थोड़ा सा उलझ रहे थे इसमें, पहले मैं सोच रही थी आपका टाइम बर्बाद करूं या ना करूं, मैं तो कर ही लेते हैं। चलो सुधा जी, थैंक यू सो मच। और हरि भाई, विद दिस आई थिंक वी आर डन एंड यू कैन, all up to you. I know you are doing double task, you are having your food and at the same time you are taking care of all these things. Take a break. So Hari bhai, if you can unmute now and speak. तो हरि भाई को खाने के लिए भी समय नहीं है, और आप बताओ। yes actually मैं रजिस्ट्रेशन देख रहा हूँ, पूरे जितने भी है काफी रिपीटर्स हैं, and I see that there are no newcomers in this 9 days meditation. So I request everyone to please, मैं एक्चुअली परसों भी मैसेज रखा था, I request at least एक पर्सन जो आप सोचते हैं कि he is ready, please call them, एक बार आपका एक्सपीरियंस शेयर करिए, so that at least they know कि क्यों बोले तो unless and until you call them, they will not know what it is, because everybody is thinking that ठीक है मेडिटेशन तो ठीक है करेंगे बाद में करेंगे, दिस इज नॉट द राइट टाइम, आगे आगे चल के करेंगे, मैं फ्री हो तो करेंगे, बट दे डोंट नो व्हाट दे आर मिसिंग। आई नो देयर आर सो मेनी पीपल हु आर रेडी, बट आई थिंक एक छोटा सा पुश की जरूरत पड़ती है कभी कभी, एंड इफ यू फील कि हाँ ये पर्सन रेडी है एंड आई थिंक इनको इस चीज की जरूरत है, तो यू प्लीज 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 कॉल देम, इनिशिएट करिए, आपका एक्सपीरियंस शेयर करिए, सो दैट एटलीस्ट दे कैन आल्सो एनरोल देम। आपके जितने भी क्लोज फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, आपके फैमिली ग्रुप्स है, उनमें शेयर करिए। एंड आई वांट न्यू पीपल, बिकॉज सी अभी काफी बड़ा हो चुका अपना फैमिली, बट आई वांट दिस नॉलेज, मैं नहीं, see everybody in this family want to grow, and they want to share this knowledge to new people, new souls. Unless and until we take initiative, it is not possible. So please, my request, please try to enroll new people, spread this knowledge. Thank you. Amanaji. So thank you Hari bhai, like I think that's it
for today, and we will be meeting all of them on Saturday now at 8:30. So as you all know, like कुछ लोग डर के मारे नहीं बुलाते हरि भाई कि और लोग आ गए तो हमको पूछेंगे नहीं पूछेंगे. You always drill into that fear of what will happen if more people are there. You see, it's not about people, it's about, see, all those who are ready, they will appear anyways. Yes. And you might have seen for all these months I have been postponing it. What was the reason? We are doing this session after almost 7-8 months. Yes. Apart from the UK one that we completed, we're doing it after 7-8 months because I saw that people are not ready for that, and now there are, and if there are, they will appear. Otherwise, you don't need to worry on that part. Whoever Hey, has I know that. once they go through this process, they will realize like what exactly all these things are all about, because the clarity is something that is not very easily provided, and it's not only about meditation, right? You all have gone through that, and that's why you are sitting here. Yes or no? All the people, those who are right now here sitting, almost all of you might have gone through that. That's why you are here, right? And you know what happens to you in those 9 days. So go ahead. We'll see. So thank you each and every one of you for joining us today. And till we meet on Saturday, remember to be God and stay God, and be a blessing to this world in any possible way. In any way possible. That's what I would like to say. Thank you so much.